यहाँ पे skip sequence है. The skip sequence can be used as a way to denote the special character, and that can be hard to type on your keyboard, but in addition they can be used to denote the character that can be reversed from something else. For example, using that the sequence can be confused of the program, so you may use escape for sequence replace that, like the following examples. अगर आपको escape इक्वेशन यूज़ करना है या सीक्वेंस यूज़ करना है, तब वैसे कैरेक्टर जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आप उसको नोट करने के लिए आप escape का यूज़ कर सकते हो. जैसे यहाँ पे लिखा है escape and this is another line. So this is called as escape equations, and we are using the escape sequence to write a string in sentence form. Then triple quotes, we have spent a bit of time taking about the both single and double quotes, but there are times when you may need to bring in the triple quotes. So this is used to when you need to define the literal that will be span many lines or one that already has a lot of quote in it. To do this, just use a single and double together or the three singles. The same rule apply with the triple quotes as will the other. You will need to start and end the phrases with the same one. And then I'm going to tell about what is string operations in Python. Now the string operation that you may use in a lot of the concentrations. This is used in order to join a pair of a string together, and you will notice it is there with the plus symbol. And there are a lot of functions that the Python is able to help you with. They will work with the string, create a variety of operations, and they are going to be some useful options that can be lot or more in Python program. In Python program, a string called immutable, and this is mean that once you create a string, it is not capable of being a change. You may have assign a new variable to a specific variable that exists if you are looking to make some changes. There is so much that you are able to learn about when it comes to getting started with the Python. It may be a simple language, but you want to be able to learn how it works and how to write the things done properly, and even how to leave the comments for other understand when they are looking for the code. It may seem a bit intimidating in the beginner, but just before too long, and with some practice you will get it down and be writing your own code in any time. बेसिकली स्ट्रिंग का क्या होता है ना कि जब भी हम स्ट्रिंग बेसिकली हम सेंटेंस को बोलते हैं, बट पाइथन में भी क्या होता है हम सेंटेंस को स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं. जो भी आपके सेंटेंस होते हैं, दिस इज़ माई वर्ड, दिस इज़ हेलो वर्ड, समथिंग लाइक दैट. तो आप जब यूज़ करते हो ना, तो आपको ये सब चीज़ें आपको डबल कोट सिंगल कोट से लिखनी होती हैं. आप इसके थ्रू आप किसी प्रोग्राम कोड को राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो. इवन आप आउटपुट भी चाहिए था, आप आउटपुट में भी इसको आप दिखा सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल एंड व्हाट they do in Python. The next thing that we are going to discuss about variable.
Variable are the basically that label that will denote the where in your computer's memory something is going to be stored, and they can be also hold values. When it comes programming that is typed with the statics and the variable, we each have the value in the predetermines, and each variable is only going to hold the value of that type. आपको तो याद होगा ना कि जैसे हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेटर आपकी बोलते एक फंक्शन होता है। मान लो कैलकुलेटर एक फंक्शन है, आप कैलकुलेटर में वैल्यू वेरिएबल्स लेते हो, मतलब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को इसमें एंटर कराते हो कैलकुलेटर में, और उसके थ्रू आप उसको ऐड ऑन करते हो, सब्ट्रैक्शन होते हो, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप कैलकुलेटर के थ्रू उसके ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमें पता ही है। ठीक है, तो आप जब भी आपको वेरिएबल का लिखना हो उसके बारे में या पढ़ना हो, तो एक चीज़ याद रखना कि वेरिएबल मतलब होता है कि जहाँ पे डेटा, जिस वेरिएबल उसे कहते हैं, उसका डेटा डिपेंड करता है अदर वैल्यूज़ पे, या बोल सकते हो कि डिपेंड करता है अदर सीक्वेंस या इक्वेशंस पे। तो बेसिकली वेरिएबल मतलब वैरी मत करना, वैरी मतलब चेंज होना, इसका वैल्यू अब बार चेंज हो रहा है, जिसका वैल्यू वैरी कर रहा है, तो इस तरह के हम उसको वेरिएबल बोलते हैं, इसे हमको वेरिएबल नाम ही बोलते हैं उसका। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इतना। एग्ज़ाम्पल है, हाँ लिखा है, example you can name a variable count and have it the integer value is 1. You would show this type of simple writing, count 1. Note that this is syntax. You can assign a value to the variable with the same name. If you try to access a value in variable is had been defined, the Python interpreter will not be read through this. It will be just exist out of program and give you error. You can choose or define a few different variables in one line, but this is not the best practice, so you use for example of could be this. ओके, इस मान लो क्या काउंट 1 लिखा है, काउंट क्या है आपका, हमने काउंट लिख दिया, हमने ए लिख दिया, हमने एक्स लिख दिया, हमने वाई लिख दिया, हमने जेड लिख दिया, हमने कुछ भी लिख सकते हैं, वहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को असाइन करने के लिए। तो हमने जो भी लिखा, हमने काउंट लिखा, हमने ABC लिखा, हमने एक्स लिखा, हमने वाई लिखा, हमने एफ लिखा, हमने जो भी लिखा, तो हम बेसिकली कर क्या रहते हैं यहाँ पे, हमें ये सब वर्ड जो मिल रहे हैं, सो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई वेरिएबल अगर एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा है, वेरिएबल को हमेशा हम क्या डिफाइन करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड डिफाइन करते हैं, और राइट साइड में उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। राइट साइड में कोई वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते, हमेशा लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है, राइट साइड में उसकी वैल्यूज़ होती है। मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल को साइन करने के बाद उसकी वैल्यूज़ क्या होगी वो हम डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि उसकी वैल्यू हम क्या पास कराना चाहते हैं, उसकी वैल्यू हम क्या लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे काउंट 1 लिखा है, तो आप काउंट 1 की जगह कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप काउंट लिखा है तो काउंट 1 की जगह आप चाहो तो 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिख सकते। आप या तो 1 लिखो, वैल्यू 1 2 3 लिखो साथ में। अगर आपने 1, 2 लिख दिया तो सिर्फ 1 कंसीडर करें, 2 कंसीडर नहीं करें, क्योंकि जब कॉमा लग जाता है तो हम मानते हैं कि उसकी वैल्यूज़ उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू 2 है। तो अगर आपने उसको कभी कॉल किया फंक्शन में, आपने फंक्शन थ्रू उसको कॉल किया तब तो रन करेगा, अदरवाइज़ आपको एरर दिखाएगा कि आपको वैल्यूज़ असाइन नहीं है। जैसे एग्जांपल तीसरा दिया, दूसरा एग्जांपल दिया है कि अगर कोई काउंट रिज़ल्ट टोटल, हमें 3 वेरिएबल्स दिया, तीनों की वैल्यू दिया 0,0,0। इसका मतलब काउंट की वैल्यू कितनी है 0, रिजल्ट की वैल्यू कितनी है 0, और टोटल वैल्यू कितनी है 0, ऐसे वैल्यू का है। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू दे सकते हैं कॉमा करके, बट हमें उस अगर जितने भी कॉमा करके वैल्यूज़ देंगे उतना ही हमें वेरिएबल भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, आपने 3 वैल्यूज़ दे दी उसकी, तो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया 3 वैल्यूज़ देगा तो भी आपका एरर दिखाएगा, पूरा आपका रन नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ वेरिएबल देखते हैं क्या होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल देख लेते हैं क्या होता है।
You will not be able to access every variable from all the parts of the program, and not every variable will be same length. ऑब्वियस बात है, मैंने बताया ना कि सेम लेंथ का वेरिएबल नहीं होता है, होता है कोई सी एक्स वाई जेड लिखा हो, कहीं सिर्फ एक्स लिखा हो, कुछ लिखा हुआ हो। तो वेरिएबल भी आपका बेसिकली दो टाइप का होता है, लोकल वेरिएबल बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। आगे हम बताऊँगी आपको किसे कहते हैं लोकल वेरिएबल, किसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, बताऊँगी भी आपको मैं आगे। The way that you define the variable is going to be determined when how the long you will able to access this variable, and the section of your program where you can access the variable going to be known as the scope, and with time though the variable will be available is known as a lifetime. बेसिकली क्या होता है, सेक्शन ऑफ प्रोग्राम वेयर यू कैन एक्सेस द वेरिएबल इज गोइंग टू बी नोन एज स्कोप। अब जहाँ पे इस सेक्शन में आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो या फाइंड आउट करते हो, सब क्या बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं। एंड द टाइम दैट द वेरिएबल विल बी अवेलेबल, जहाँ पे वेरिएबल ऑल टाइम आपका अवेलेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ टाइम वेरिएबल बोलते हैं। जो हमेशा आपको अवेलेबल रहता है, हमेशा आप कॉल करते हो तो आपके प्रोग्राम को रन कराता है। then आपका है ग्लोबल वेरिएबल आर द दोस दैट आर द डिफाइंड विदिन द मेन फाइल बॉडी, and you will able to see these variables through the entire file as well as the inside a file that will be able to import the specific file. These variables have a far reaching effect, and because of this you may notice some consequences that you did not notice. This is why the most people will not be global variable, or they will use the sprinkly, and you should only the stuff into the global namespace, and you can also use the globally like with the function और classes. बेसिकली क्या होता है, देखो ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल दो होता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है। आपको बता देते हो क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल होता है जो आपके ब्लॉक ऑफ फंक्शन के आउटसाइड में होता है। हम किसी फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं और फंक्शन डिफ़ाइन करने से पहले आपने जो वेरिएबल को डिफ़ाइन किया है तो उसे हम बोलते हैं कि वो वेरिएबल जो होता है वो आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड डिफ़ाइन किया गया है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। मतलब उसको हम कभी और भी कॉल, उसको कितने फंक्शन क्रिएट करेंगे उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन के इनसाइड में आपने किसी वेरिएबल को कॉल किया, किसी वेरिएबल को असाइन किया, कोई वेरिएबल लिया आपने, उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। क्योंकि वो वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन के थ्रू कॉल किया जाता है, उसी फंक्शन में कॉल करते हैं जहाँ पे उसको हम असाइन करते हैं, जहाँ उसको डिफाइन किया जाता है। अगर दूसरा फंक्शन डिफाइन किया तो आपको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ता है वहाँ पे, फिर उसको कॉल करना पड़ता है। लोकली जिसको कॉल करते हैं हम लोग फंक्शन के अंदर जो होता है वेरिएबल, उसको हम लोकल बोलते हैं। जो फंक्शन के आउटसाइड में होता है वेरिएबल उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। इफ़ यू डिफाइन द वेरिएबल इनसाइड द वेरिएबल इट विल बी द कॉल्ड लोकल। वही चीज़ हुआ, अपने वेरिएबल के अंदर अपने को वेरिएबल डिसाइड किया तो उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। This is when the ability to access the form where it is the defined will not be accessed when the function is executed. These are only going to be available in the certain area of the program and cannot be found in the use of anywhere. ठीक है ना, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल जब भी आता है आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ ग्लोबल व्हाट इज़ लोकल, तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। We have discussed the option with the through the book of that have already the given name and the assignment operator is equal to assign. Okay, what is assignment operator? असाइनमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि असाइनमेंट हम लोग कॉलेज में को असाइनमेंट मिलता है करने को, हम असाइनमेंट करते हैं। बट यहाँ पे जो असाइनमेंट का मतलब होता है ना वो इक्वल टू से मतलब होता है। इक्वल टू मतलब हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हम x इज़ इक्वल टू 2 लिखे हैं अगर, तो हमने क्या x इज़ इक्वल टू 2 लिखा है, मतलब x हमने असाइन किया है, x से कुछ वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। और हम x डबल इक्वल टू 2 लिखते हैं, इसका मतलब x की वैल्यू 2 है या x 2 के बराबर है, ये हम बोल सकते थे। असाइन मतलब होता है कि हम उसको असाइन करते हैं और फिर उसकी वैल्यू को भी असाइन करते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं फंक्शन में। देखो कैसे होता है, आप देखो खुद देख लो।
आप किसी और प्रोग्राम में यूज़ करोगे इसको, आप मान लीजिए सी का यूज़ करो या किसी और लैंग्वेज का यूज़ करो, तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर को दिखाने के लिए 2 लाइन या 3 लाइन की कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको दिखाना पड़ता है हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़। पाइथन में क्या होता है बेसिकली आप सिंगल लाइन में सिंगल सिंबल में आप इसको दिखा सकते हो कि आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हो। असाइनमेंट का मतलब बेसिकली होता है असाइन करना, वैल्यू असाइन करना। Keep the mind the equal to is not going to be mathematical sign in the programming. You can if you are using the equal to in mathematical, it means equal to मतलब 2 is equal to 4 बोलते हैं। अक्सर हम लोग बोलते क्या है कि 2 is equal to 3, 2 is equal to 3, x is equal to 3 है, y is equal to 4 है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका जो होता है उसमें जो इक्वल टू तो सही है, वो तो अपने जगह सही है, लेकिन आप प्रोग्राम में आते हो ना तो आप उसको इक्वल टू अब नहीं बोल सकते हो। कहीं इक्वल टू लिखा है तो आप इक्वल टू नहीं बोल सकते हो, उसको आपको असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, इक्वल टू के लिए यहाँ पे अलग सिंबल होता है, असाइनमेंट के अलग सिंबल होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 is equal to 3 लिखा है या x is equal to y लिखा है तो क्या बोल रहा है। x is equal to y का मतलब क्या, x की वैल्यू y नहीं, x की वैल्यू 2 असाइन की गई है, ये मतलब होता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कंफ्यूजन ना रहे तो कहीं आपको नोट कर लेना, कहीं इसको लिख लेना। मॉडिफाइंग वैल्यू क्या होता है? मॉडिफाइंग वैल्यू द सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू विल एबल टू डिफाइन ए स्पेसिफिक वेरिएबल that has a value that has been set, and this means that the values cannot be changed. This is called a constant in the programming language. Basically modifying value मतलब कि ये modifying मतलब जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, जो आप दिस मीन्स दैट द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। अब बेसिकली मॉडिफाइंग मतलब हम जो समझते हैं उसका मतलब तो ये होता है ना कि चेंज करना, वैल्यू चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू चेंज नहीं करते हैं हम लोग, किस चीज़ की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको एज ए कॉन्स्टेंट ही हम ट्रीट करते हैं। तो अगर एक्स इक्वल टू 2 लिखा है कहीं पे या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा है तो एक्स वाई को तो हम चेंज कर सकते हैं, बट 3 जो लिखा है तो चलो नहीं कर सकते। एक्स वाई की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हो सकता है एक्स वैल्यू 1 वाई वैल्यू 2 है, बट जो 3 है वो तो चेंज नहीं होगा प्रोग्राम में, तो वही रहेगा। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन मिलते हैं आपको, इस तरह के जो वैल्यू मिलते हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग। और जिसे हम लिटरल भी कहते हैं, सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग पाइथन में क्या बोलते हैं, मॉडिफाइंग एलिमेंट्स बोलते हैं और मॉडिफाइंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, हमें लिखा नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7, नंबर ऑफ वीक इन अ ईयर 52। ऑफ कोर्स देयर आर नो रूल to say you have to put the right number at the end. You could say there are 8 days in a week if you want to, because of the Python programming will not be keeping track, but it is best to just keep accurate in the case other order would be like to use it. अब देखो तो क्या लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है ना नंबर ऑफ़ डे इन अ वीक 752 ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर आपको किसी वेरिएबल के साथ डिफाइन करना है कांस्टेंट वैल्यू को, तो आप बेसिकली क्या करते हो, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। अंडरस्कोर का यूज़ करके आप दिखा सकते हो कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ में। तो इसमें हमने क्या किया, हमने वेरिएबल भी लिया है और कांस्टेंट वैल्यू भी लिया है।
ठीक है. This can really helpful you to use this string, and sometime in the program you will want to change the maximum of the number that allowed the to program. They may be fine in the bit, but maybe later on you need to be increases or decreases this number. Without setting up the constant, you can going to have to go through and make quite a few changes to get everything in the match. But with a good constant in order, you can just go back to one place and get it the all fixed up. बेसिकली हम क्या करते हैं, तो फिक्स्ड अप मतलब क्या होता है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन को, उसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं करते हैं, उसको हम फिक्स्ड अप कर देते हैं प्रोग्राम में. देखिए हम पाइथन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं, पाइथन इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं लोग. When you hear about the implementation of Python, it means that the involvement of the program that is providing support to executing a program inside a Python language, and you are working on within the program. There are also be some variant of the C Python that you can work will make a big difference in the way that the program work. Some of the features that are available with the variant included cross twin linker. This is going to be combination of between C Python and on library of your use. ठीक है, हम लोग देख रहे थे वेरिएबल्स का. तो वेरिएबल में बेसिकली हम लोग देख रहे थे कि वेरिएबल हमने पहले पढ़ा, वेरिएबल क्या होता है, कैसे उसे वैल्यू असाइन करते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कैसे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं. एग्जांपल देखेंगे हम लोग. Variable may sound like something that too complicated to learn, but they are the basically locations in the memory that reserve order in the store in the values of your role. And when you work on the certain variable, you are reversing the export of the memory. देखो इस एग्जांपल लिखा है, एक देखते हैं हम लोग. लिखा क्या है, देखो x इज इक्वल टू 10 का. हमने देखो यहाँ पे हैश यूज़ किया. हैश क्या बोलते हैं, कमेंट लाइन बोलते हैं. x क्या है, वेरिएबल है. इज इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और 10 क्या है, उसकी वैल्यू है. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने x दिया है, x इज इक्वल टू 10 लिखा है, उसको हमने एज इंटीजर कंसिडर किया. असाइनमेंट ऑपरेटर pi लिया है मैंने, pi फ्लोट वैल्यू आपके लिए 3.14. y लिया है 200. एम्प्लॉय नेम लिया है अरुण बोरा. string assignment है. Keep in mind that when you are working on code, you are able to leave the comment with your work by using the hash sign, and they allow you to explain the what is going to on the code. Leave some notes and or do something the within the paragraph. It is going to be read the interpreter since the just little one note that you are leaving behind yourself for the someone else. व्हाट इज़ मीन, जब कभी भी हम हैश का, मैंने बताया ना आपको, जब भी हैश का यूज़ करना, हैश का यूज़ बेसिकली क्यों कर रहे हैं, जब भी हम कोड को रन करा रहे हैं, तो हैश जो है हमारा, हैश वैल्यू जो हमारी है, वो हमें उस कोड के लाइन को डिस्क्राइब कर रही है, डिफाइन कर रही है. ये कोई शॉर्ट नोट टाइप का बोल सकते हो आप लोग. देखो उसको नोट कर लो एक बार. तो
ठीक है। तो देखो इसमें दो सारी चीज़ का यूज़ करके दिखाया आप लोगों ने कैसे यूज़ होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या लिखा, प्रिंट %, वाई print employee name is the employee name. That would be when we put the through the interpreter, and the inputs that you would get should be extend y200 and employee name is Arun Mandra. सीधे नेम भी प्रिंट करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं आप ऐसे लिख सकते हो। आप चाहो तो सीधे नेम इज इक्वल टू करके वेरिएबल नेम लो, उसमें लिखो कि या प्रिंट ही लिखो, प्रिंट एम्प्लॉय नेम इज़ अरुण बद्रा या जो भी है, अरुण बोरा जो आपको लिखना है, इसे भी करा सकते हो इसको प्रिंट। मल्टीपल असाइनमेंट देख लेते हैं क्या होता है। In addition to working with the single variable that were listed above, you will also be able to work a multiple assignment, and this means that you are going to be able to assign one value to several different variables at the same time. To do this, you would just need to place a equal sign between all them to keeping them organized, and tell the computer that the value is going to be with all the variable together. You can keep the separate out of, that is easier to use, but the using this method is going to help you to send everything to same memory locations to the computer, and you will get code and clear look your screen. A is equal to B is equal to C. हमने क्या लिखा है, हमने 3 वेरिएबल लिया है, तीनों वेरिएबल हमने असाइन किया और तीनों की वैल्यू हमने क्या लिखा, 1 लिखा। तो जो 3 वेरिएबल है आपके, 3 वेरिएबल इसमें है, तीनों वेरिएबल आपको डिफरेंट दिख रहा है ना, A B C डिफरेंट, लेकिन तीनों की वैल्यू कितनी, 1 है। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर हम तो सिंगल यूज़ करके दिखाया था आपको, सिंगल कैसे यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे होती है। आपको डबल दिखाया था मैंने कैसे, फिर आपको ट्रिपल दिखा रही हूँ कैसे इसमें ट्रिपल वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो हम पाइथन में बेसिकली यूज़ करते हैं जिसको होते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप हो सकते हो आप पाइथन का। बेसिकली ये तो यही जो 5 हैं, मेन 5 आपको यूज़ पढ़ना है। यही 5 आपको एग्ज़ाम में आपके आएंगे, यही 5 आपके पेपर में आएंगे, यही 5 के बारे में क्वेश्चन होगी, आप क्वेरीज होगी आप, तो 1 by 1 देखेंगे इसको भी हम। सी में जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं बेसिकली डेटा टाइप या यूज़ करते हैं सी में जो डेटा टाइप यूज़ कर देते हैं उसका यूज़ कहाँ करते थे, प्रोग्राम में राइट करते थे, हम लोग डेटा टाइप पे काम पड़ता था कि हमें असाइन करना, नंबर असाइन करना हो, लिस्ट असाइन करना हो, कुछ भी असाइन करना हो, तो हम देखते थे कि डेटा टाइप इसमें क्या यूज़ किया गया, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को वहाँ पे डिनोट करते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पाइथन में भी आपको डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। डेटा टाइप का बहुत अच्छा रूल होता है पाइथन में, बेसिकली बिना इसके रूल के आप कोई प्रोग्राम कोड नहीं कर सकते हो, कोई प्रोग्राम राइट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्टली हम देखते हैं नंबर के बारे में, नंबर डिसेंड्री टपल लिस्ट स्ट्रिंग नंबर देखेंगे। नंबर डेटा टाइप इज़ द वन ऑफ द विल वन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज एंड दे आर गोइंग टू बी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट वंस यू असाइन अ वैल्यू देम, and they are also from a different type of numerical that Python will support, including complex number, float number, long integer। यहाँ पे नंबर भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका, फ्लोट नंबर होता है आपका, फिर लॉन्ग इंटीजर दैट कैन ऑल्सो शो द हेक्साडेसिमल एंड लो ऑक्टल। इंटीजर मतलब आपका सिंगल इंटीजर होता है आपका, ठीक है। one things note that the while Python will allow you to use the lowercase in when doing the long form of the number, it is best to go with the uppercase L whenever you are using the letter. This is going to be help you avoid the confusion running the program between the I and
and I is Q look like similar. And anytime the Python is displaying the long integer, so one is integer, and you will see the uppercase L. So basically you just remember one thing. If you are going to use the numbers, you are just define the case sensitive numbers, and you know very well कि पाइथन में हमें कैसे यूज़ करना है इसको. मैंने आपको इस पर प्रोग्राम कराया है, मैंने आपको इस पर एग्जांपल भी दिखाया है, मैंने आपको एग्जांपल आपको करके बताया भी है. स्ट्रिंग देखते क्या होता है. String is identified in Python is a contiguous set of characters that will be shown by the quotation mark. And Python is going to allow the either double quotes and single quotes, but you do need to keep a thing organized, and this means that if you are using the double quotes at the beginning of a string, you need to end the same string with the double quotes, and the same goes when you are using the single quote. Both of will mean the same things. You just need to make sure that you are using the proper quotes and mark to be make the code look good and avoid the confusing of Python program. बेसिकली क्या मतलब है, इस लिखा है स्ट्रिंग हाई पाइथन लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना. तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम में कोई एरर ना आए, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो सेंटेंस जो अलजेब्रिक सेंटेंस आपने यूज़ किया है जिसको हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं, तो आपको क्लोजिंग और ओपनिंग जो आपने कोट्स यूज़ करा, डबल भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल भी यूज़ करते हो, आपकी मर्ज़ी है. आप दोनों यूज़ कर सकते हो, दोनों को यूज़ रन करा सकते हो. बट आप अगर डबल यूज़ करो तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होनी चाहिए, डबल ही होनी चाहिए. सिंगल तो सिंगल की ओपनिंग और क्लोजिंग भी सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप सिंगल ओपनिंग में लगा दो, डबल आप क्लोजिंग में लगा दो, डबल कोट्स आप क्लोजिंग में लगा दो. तो ऐसे आप नहीं कर सकते प्रोग्राम को. ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका. जैसे पहला द स्ट्रिंग था आपका हाई पाइथन, तो आपको प्रिंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. अगर आपको हाई पाइथन लिखा हुआ है, आपको इस हाई पाइथन में सिर्फ आपको एच प्रिंट करना है, तो आप स्ट्रिंग ज़ीरो लिख सकते हो. क्यों लिखा मैंने ज़ीरो? क्योंकि ये आपका इंडेक्सिंग है. पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंडेक्सिंग ज़ीरो से होती है, ज़ीरो टू अप टू 10 होती है. ठीक है ना. तो आपको अगर मैंने ज़ीरो लिखा है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एच. इफ़ आई एम राइट द 2:5 लिखा है, इट मीन्स प्रिंट द कैरेक्टर स्ट्रिंग फ्रॉम द थर्ड टू फिफ्थ मतलब थर्ड एलिमेंट पी है और फिफ्थ क्या आपका एन है. तो वो पूरा आउटपुट आ जाएगा, मतलब पाइथन लिख के पूरा आउटपुट आएगा. और 2 लगाया हुआ है, तो 2 के बाद जितने प्रिंट्स हैं आपके, जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 के बाद, थर्ड प्रिंट द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड कैरेक्टर. अब थर्ड कैरेक्टर जो भी आपके स्ट्रिंग स्टार्ट हो, सारे प्रिंट होके आ जाएंगे. मैंने स्टार्ट लगाया है, ठीक है, मैंने स्टार्ट लगा दिया कि वहाँ पे स्ट्रिंग क्या होगा आपका 2 टाइम्स प्रिंट होगा. मतलब आपका हेलो हाई पाइथन जो है 2 बार आपको प्रिंट होके आएगा. स्टार प्लस गाइज लगाया तो प्रिंट आप कंसिडरेट द स्ट्रिंग. फॉर द मोस्ट ऑफ पार्ट यू आर प्रोबेबली गोइंग टू बी वांट टू प्रिंट एंड द होल स्ट्रिंग विल लीव विद द मैसेज ऑफ योर प्रोग्राम. So the first print that you do the going the mathematics is just want to print the high or some other variant the word label. You may find the other options are really useful, and you can do any combination of these, and they are just example to help you get started. Then आपका list are one of the most versatile data type that you can work on Python. In this language, the list is going to contain a different item that are either being closed within the square bracket or separate out of the comma. ठीक है, बेसिकली हम लिस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं.
They are just similar to the array, and you would see the C if you have worked with that program. And the one different that come up with these in that the item that are the list can be form of different data types. The value that are stored inside the list can be accessed with the slice operator as well as the square bracket symbol, colon symbol. The value of that are stored inside the list can be accessed with the slice operator as well as a symbol of with the index starting. वो देख लो पूरा, तो फिर आगे बढ़ा है। यहाँ से देख लो पूरा, यहाँ से था नंबर डिसेंबर टपल लिस्ट स्ट्रिंग नंबर पढ़ लिया हम लोगों ने, स्ट्रिंग पढ़ लिया हम लोगों ने, लिस्ट पढ़ लिया। तो ये नंबर था आपका। 3 तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्लोट, लॉन्ग इंटीजर। ये आपका स्ट्रिंग था, देख लो एक बार, फिर आगे पढ़ाऊँगी। और ये आपका क्या था, लिस्ट। लिस्ट में वो तो एग्जाम्पल जो दिया दिक्कत है, एक बार एग्जाम्पल ये लिस्ट लिखा है, मेनू लिखा है, साइनू लिखा है, A6.4.0। इसमें आपका देखो इंटीजर नंबर भी है, फ्लोट नंबर भी है, वेरिएबल्स भी हैं इसमें आपके, ठीक है ना। और प्लस इसमें आपके स्ट्रिंग भी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ पहला एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो आप प्रिंट लिस्ट इंडेक्स नंबर 0 यूज़ करोगे, तो आपको इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा प्रिंट होके आ जाएगा। आपने लिस्ट 1:3 किया है, प्रिंट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट एंड गोइंग टू बी थर्ड एलिमेंट। 1-3 मतलब 1-3 के रेंज आपने दिया है, आपने रेंज क्या दिया, 1 से 3 तक का रेंज दिया है कि मुझे इस रेंज तक के सारे एलिमेंट चाहिए। तो 1 छूट जाएगा, 3 टूट जाएगा, आपको जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आपको प्रिंट होके आ जाएगा। 2 कॉलन लिखा है, 2 के बाद के सारे जो थर्ड से लेकर लास्ट तक होंगे सारे आपको प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है। स्टार लिखा है, जो भी आपका लिस्ट है, जो आपका नाम प्रिंट लिस्ट बनाया आपने, और 2 टाइम्स का हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। The next thing that we need to learn about for Python language is about the tuple. This is one is a pretty similar to what you are going to find with list, but it is going to be use some different sign. The main different thought it is that the list will be use the brackets and the elements as well as the size, and can be changed through the program. टपल क्या होता है, टपल भी आपको उसको लिस्ट जैसे बोल सकते हैं, बट लिस्ट होता नहीं है वो, ठीक है। 2 डिफरेंट चीज़ होती है। मेन डिफरेंस हो दैट लिस्ट विल बी ब्रैकेट्स एंड द एलिमेंट एज वेल एज साइज कैन बी चेंज फॉर द प्रोग्राम। ऑन अदर हैंड द टपल आर गोइंग टू बी पैरेंथेसिस, मतलब इसमें कर्ली ब्रैकेट्स होके हैं आपके टपल में, एंड सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स में तो बड़े ब्रैकेट्स होते हैं, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट दैम। जब आपका टपल एक बार क्रिएट हो जाता है तो उसको अपडेट नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एंड अ गुड वे टू थिंक अबाउट द टपल इज दैट दे आर गोइंग टू बी लाइक अ रीड ऑनली पेज। अब जैसे आपको पेज क्या होता है, रीड ऑनली पेज क्या होता है, बेसिकली रीड ऑनली पेज मतलब कि हम कुछ चीज़ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसको ना उसको अल्टर कर सकते हैं, ना उसको रिमूव कर सकते हैं, ना उसको डिलीट कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। हाँ, उसको हम हाइड कर सकते हैं या उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, तो उसको हम टपल बोलते हैं, आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। अगर जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ अपडेट कर सकते हैं, न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं, तो आपका लिस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इस एग्ज़ाम में आपके आता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट आपका डिसेंड्री। देखो ब्रैकेट का डिफरेंस होता है, फिर से वो देख लो ब्रैकेट कैसे होता है। देखो नंबर में 4 नंबर होते हैं, स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स होता है, लिस्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, डबल में आपका बड़े ब्रैकेट्स होते हैं और डिसेंड्री में आपका कर्ली ब्रेसेस होता है। देखते हैं देखो डिसेंड्री क्या होता है। डिसेंड्री आर another kind of tools that you can use when you are working in Python. They are similar to the hash table type and they are going to work similar to the hash, or they are that you can find out the programming language. They will also be considered the key values pair, and while key can be almost any type of the Python, you will notice that they are usually going to be string or number. For the most part, when it is come to values, you will find that they are arbitrary object in Python. एग्जाम्पल देखो इसका क्या करते हैं। डिसेंडरी स्टोर द की वैल्यूज़, की वैल्यू पेयर फॉर्म में होता है, इसमें बी रिट्रीव्ड बाय द वैल्यू विद द की। जिसमें मतलब कोई बायोडाटा बनाना किसी का, आपको कोई लिस्ट बनानी है, इसमें क्वांटिटी भी लिखनी है, लिस्ट में नाम भी है, क्वांटिटी भी लिखनी है। इस तरह कुछ अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे आपने लिस्ट बनाया है कि आपको ग्रॉसरी के सामान खरीदना, मान लो आपको ऑयल चाहिए, मान लो आपको घर में राइस चाहिए, आपको घर में भी कुछ भी चाहिए, आपको सामान चाहिए, तो आप क्वांटिटी लिखते हो ना। इस तरह की चीज़ आपको कभी चाहिए हो तो आप क्या बोलते हो, की मतलब क्या हो गया आपका राइस, आपका की हो गया, क्वांटिटी 2 kg 3 kg आपकी क्वांटिटी हो गई। तो यानी kg उसकी वैल्यूज़ जो आपने लिखा वो वैल्यूज़ हो गई, और जो आपने लिखा क्या चाहिए वो आपकी की हो गई। इस तरह का अगर लिस्ट बनाना होता है तो हम बेसिकली डिसेंड्री का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिसेंड्री में जो डेटा होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है डिसेंड्री में लिखा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका सिम्बल होता है DICT, टेस्ट सब दिखाते हैं इसको इससे। जैसे मेनू लिखा है, दिस इज़ मेनू, दिस इज़ नंबर 10, नेम अरुण, कोड 23 डिपार्टमेंट IT। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, बट आप ऐसे की वैल्यू से दिखाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस वैल्यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द मेन की, दिस वैल्यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ 10 की, दिस वैल्यू प्रिंट द कंप्लीट डिसेंड्री, एंड दिस वैल्यू प्रिंट आउट ऑफ द कीज, एंड दिस विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज़। आपको वैल्यूज़ चाहिए, आप प्रिंट इंडेक्ट, आप जो भी आपने बनाया है जिस नाम से आपने, मैं चाहो तो सिर्फ लिस्ट लिखती या सिर्फ कुछ और लिखती, ABC लिखती, तो आपने लिस्टों तो लगाया है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए तो डॉट की फंक्शन बना कर लिख दो, वैल्यू लिख दो। अब सिर्फ की चाहिए तो की लिख दो, आपको दोनों चाहिए तो आप उसमें दोनों का यूज़ कर सकते हो। आप डॉट करके हैश कर देंगे, आप इंड ऑपरेटर का यूज़ करके स्पेसिंग करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। इसी ध्यान रखिए, जिस ऑर्डर में हम वैल्यू डिसेंड्री में रखते हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू की स्टोर नहीं होती है। वी आर गोइंग टू बी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्डरिंग अमंग द एलिमेंट, एंड दिस इज डज नॉट मीन दैट you can say that the element are out of the order, they are just going to be unordered form। आपका जो भी आपका डिसेंड्री होता है वो अनऑर्डर फॉर्म में होता है, ऑर्डर फॉर्म में नहीं होता। ऑर्डर मीन्स वी आर जस्ट पुट द वैल्यू इंडेक्सिंग, इफ वी आर गोइंग टू पुट द 0 इंडेक्सिंग ऑफ name, and 1 is Arun and 2 is code and 3 is 23 departments, like that. So it means we are just ordering the elements, but in dicencentry we are not get a list in order form, we are just get a list in unorder form. So we put the data in unorder form, and we are very well know that we get output in unorder form. ठीक है, तो आपका ये जितना था कंप्लीट हो गया। देखो क्या क्या था इसमें आपका था नंबर बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया, लिस्ट बता दिया, डबल बता दिया, डिसेंड्री बता दिया। ठीक है, सारे मैंने बता दिया आप लोग को। तो आगे देखते हैं हम लोग कीवर्ड देखते हैं हम लोग। ये आपका क्या था, डेटा टाइप था, तो कीवर्ड देख लेते हैं।
Most of type of programming that you will deal with the have some keywords or words that are reverse a part of the language, and they are the word that you should not please use your code unless you absolutely cannot help it. 33 कीवर्ड इन पाइथन देखो कम करके हम ऐसे होल्ड कर रहे हैं, तो तो लिखते जाओ इसको, फिर आगे बढ़ाएंगे तो फिर लिख लेना। अंदर लिख लो, हमने होल्ड किया सारा बार में लिख लो। ठीक है, और लिख लो, आंसर बचा लिख लो। ये कीवर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, तो आपको वेल नोन कि आपको एज इट इज़ यूज़ करना है, तो कोई चेंजेस नहीं करना है। बट अगर आपको नहीं पता है कीवर्ड के बारे में और फिर आप इसका यूज़ करते हो, या तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या आप इसके सही पोजीशन पे यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रोग्राम में एरर देता है। तो कई बार समझने में दिक्कत होती है कि प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फिर भी क्यों एरर दे रहा है, पता ही चलता है। तो हम ध्यान देते हैं कि हम जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इन यूज़ किया, कहीं हमने एज़ यूज़ कर लिया, कहीं ऑल यूज़ कर लिया, ऐसी चीज़ हम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से भी हमारे प्रोग्राम में एरर देता है। ठीक है, स्टेटमेंट देखते क्या होता है। व्हेन यू राइटिंग योर कोड इन अ पाइथन लैंग्वेज, यू आर गोइंग टू बी मेकिंग एक्सप्रेशंस and statement to get it done. Expression are going to be able to process the object, and you will find the embedded within your statement. A statement is basically a unit of code that will be sent to the interpreter so that it can be executed. And there are two types of statement that you are use: assign, so for, and print. You will able to write out of the statement or multiple statement using the Python shell. बेसिकली जो लिखा हुआ है ना, एक्स इक्वल टू 56 लिखा है, नेम इक्वल टू 9, जे इक्वल टू 4, प्रिंट एक्स, प्रिंट नेम, प्रिंट जेड, ये अब क्या स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ही बोलते हैं। ठीक है ना, जो भी हम लिखते हैं, जैसे मान आपको कुछ प्रिंट कराना हो, जो आप आउटपुट चाहते हो मशीन से, जो आप इंटरप्रेटर से आउटपुट चाहते हो, जो पाइथन से आप आउटपुट चाहते हो, तो आपने कुछ लिखा ना, जो भी आपकी किसी सेंटेक्स के साथ नहीं यूज़ कर रहे हो, जैसे आप सेंटेंस से आउटसाइड ब्लॉक में आप यूज़ कर रहे हो, तो आप ऐसी चीज़ें जो आप प्रिंट करना चाहते हो, जो आप वैल्यू चाहते हो, जो आप स्ट्रिंग फॉर्म में, फ्लोट के फॉर्म में, उस सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स। There are a lot of read symbols that are going to show up when you make the code in your Python program, and it is important to understand इस एग्जाम्पल पर लिखो। सब जो एग्जाम्पल लिखा है स्टेटमेंट पर लिखो, स्टेटमेंट क्या होता है ये, और ये एग्जाम्पल वो लिख लो।
का ऑपरेंड एंड ऑपरेटर है. There are a lot of grid symbols that are going to be show up when you make code in a Python program. It is important to understand what the part you are able to work with and what they are all going to mean. Operators are often used to mean the subtractions, addition, division, and multiplications, and the value of the operator will be called operands. You can use many different signs for these in order to get the value that you would like to see. While you are using the operator and operands, you need to be remember that there is going to be an order evaluation follow. ठीक है. बेसिकली क्या होता है ऑपरेंड ऑपरेटर में बहुत सारे मल्टीपल डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो जितने हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं ना, सारे ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं इसमें. ऑपरेंड्स किसे कहते हैं? ऑपरेंड्स ऑपरेटर दो होता है. ऑपरेटर आपका जो सिंबल्स होते हैं डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के वो सिंबल्स होते हैं उन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं. ऑपरेंड्स होते हैं जिनके ऊपर ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स बोलते हैं. आपके ऑपरेंड का कुछ कांस्टेंट भी वैल्यूज़ होते हैं जिसको ऑपरेटर बोलते हैं. तो इन सारे कॉम्बिनेशन जो होता है उससे ही हम क्या बोलते हैं आपका ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स स्टेटमेंट या आप सकते सिंबल बोलते हैं.